manufacturing industry, IT sector. So it would be easy for me to take the examples from all type of industries for managing our projects. As we know that project is something which has an objective, like it is a kind of temporary endeavor which we undertake to create a unique product, result or services. Project can be anything. Project can be launching a new course. It can be just like we have initiated a new project because of this pandemic situation vaccine. अभी ये भी हमारे लिए project हो गया है. Even construction of a malls, relocating your office, you are launching a new software, you are launching a new website. So it can all be a project actually. You are designing a new automobile, so that is also a project. So most of the industries is now project driven. So that is why project management has become very important nowadays, because project management is nothing but you have to integrate certain skill set, knowledge, application to meet our project objective. The goal has to be meet out ultimately. So for that only we are doing the project management. So project management is nothing but it every project goes with certain sets of phases. अभी हम बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो जो मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है PMI, most of you might have heard of PMI. PMI is nothing but is a project management institute. It is a US based organization which has set certain guidelines. So it has developed certain standards for project management which most of the countries are following. जितने भी हमारे एशियन कंट्रीज है, we are following the standards from PMI. So these standards are mentioned in PMBOK, Project Management Body of Knowledge. तो जो भी हमारे project management के standards, techniques, tools and techniques we are following to gain the success, it is through PMBOK, Project Management Body of Knowledge. So Project Management Body of Knowledge gives you certain guidelines which are related to the 5 process groups of project management. What are they? Every project, when we talk about the project management means we are talking about the 5 process groups. किसी भी project में first step is the project initiation. Initiation is nothing but where we decide upon that okay, what is our objective and what is the justification why we are doing this particular project. Justification किसी के लिए कुछ भी हो सकता है. किसी के लिए justification हो सकता है कि because मेरी इच्छा है, I want to construct a very good temple. That is my wish. So projects तो हम लोग बहुत टाइम पहले से करते आ रहे हैं. It's not like that we are started doing just within last 10-15 years. Because आप किसी भी विलेज तक या किसी भी सिटी में जाएंगे, you can find out mega structures. There are beautiful buildings, beautiful palaces, temples, etc. तो प्रोजेक्ट हम बहुत पहले से करते आ रहे थे, बट उस टाइम पे we were not following the project management guidelines, the project management practices, because see they were the kings, they were the big people, nobody was there to question them कहाँ से फंड आ रहा है, कैसे खर्च कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. तो they were using it and they were doing like anything. But अभी के केस में we cannot do like that because we have to answer so many people. We cannot avail that kind of luxury nowadays. So that is why we follow these project management guidelines so that we can be successful in our project. तो project का जो first हमारा process group होता है या first phase होती है initiation, where we decide upon our objective and the justification why we want to do this project. मेरा business purpose है या because of the technological reason I am starting this new project, because of some natural like you can say the environmental condition की वजह से मैं start कर रही हूँ, या मुझे कोई मेरा इस पे social concern है जिसके लिए मैं ये project start कर रहा हूँ. So this can be various justification why we start a project. Then once you know your objective, second phase is the planning. So why planning is important? The next important phase of project management is the project planning. So ultimate purpose of planning is to allow you to predict the activities and resources that are critical for the timely completion of project. किसी भी project planning के लिए जो ultimate aim होता है, ultimate goal हमारा होता है, because we want to complete our project on time within the budget. So we need to find out the critical resources, critical activities so that we can complete our project on time. And even planning will allow you to develop certain strategies for implementation. And we are going to ensure that these activities and resources are managed and the project is delivered both on time as well as within the budget. So that is the ultimate aim of purpose of planning what we do.
I would request all the participants to keep their mic on mute, and questions you can put in the chat box, and I will be taking in the mid of the session and also at the end of the session all your questions. So planning definitely helps us to avoid the delays in our project work. How can we avoid the loss of revenue? आपके जो additional changeover cost होती है, inconvenience cost होती है, contractual disputes होते हैं, time claim, extension of time claims mostly, ये सारे issues हमारे आते हैं. So if we do a proper planning, definitely we can avoid these kinds of situations. So planning definitely helps you to optimize your time. It can eliminate or reduce the uncertainties, because हम प्लानिंग में अपने जितने भी अनसर्टेनिटीज हैं उन सबको पहले से कंसिडर करके चलते हैं. उसके लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होगा, व्हाट विल बी अवर कंटिजेंसी प्लान्स, ऑल दोस थिंग्स वी डू इन प्लानिंग इटसेल्फ. सो वी कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर ऑब्जेक्टिव. We can optimize the resources. We can provide the basis for monitoring and controlling. क्योंकि आपके पास अब एक पूरा scheduled plan है, realistic plan है, so we can definitely have a better strategy for controlling and monitoring our plan also. We can take proactive as well as the not the reactive actions, I should say. So we can always take a proactive actions if we have done a planning properly. So that is what is the next phase of project management, that is the planning. So planning involves certain processes which one has to take care. तो ये जो फ्रेमवर्क है PMI की जो हमारी गाइड है, बाइबल है, इसमें ये सारे प्रोसेसेस, सारे टूल्स एंड टेक्निक्स बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किए हुए हैं. बिकॉज अभी आप में से जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स है, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ PMP, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल. उसमें हम ये सारी चीजें डिटेल में ही पढ़ते हैं. Then third step is the project execution, because you have already developed your plan, now you are going to execute your plan. So you have to work on that particular plan, and accordingly you have to take the actions, because you have to measure, you have to track your project, you have to review your project कि as per plan we are moving या हमारे project में delay है और we are overspending, not we are spending as per our target budget. जो हमने प्लान में बनाया था, हमारा आज के डेट तक कितना स्पेंड होना था, हमने एक्चुअल में कितना स्पेंड किया है प्रोजेक्ट पे. ऑल दोस थिंग्स वी नीड टू ट्रैक एंड मॉनिटर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग. एंड फाइनली इज योर प्रोजेक्ट क्लोजिंग, वेयर वी हैंड ओवर अवर प्रोजेक्ट एंड वी कीप अ बैकअप ऑफ द प्रोजेक्ट. Then there are 10 knowledge areas in project management, that is the integration, scope, time, cost, quality, human resource, communication, risk, procurement, stakeholder. किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर आप वर्क कर रहे हो, यू हैव टू मैनेज दीज 10 नॉलेज एरियाज. इन सभी पे हमें फोकस करना होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोजेक्ट फेल होते हैं, आइदर वी हैव नॉट डेवलप्ड अ प्रॉपर कम्युनिकेशन प्लान. उस वजह से काफी प्रॉब्लम्स हमको होती है, बिकॉज कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोजेक्ट सक्सेस. So one has to ensure what type of communication has to be done to whom, कितनी फ्रीक्वेंसी पे क्या कम्युनिकेट होना है, किस फॉर्म में होना है, क्या उसका मेथड रहेगा, क्या टेक्नोलॉजी यूज करनी है, वो सारा हम लोग हमारे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में बनाते हैं. रिसोर्स मैनेजमेंट के टेक केयर ऑफ ऑल अवर guidelines, all our strategies, how we are going to manage our resources, because in every project, project manager should get right resource at right time in right quantity. तो आपको कौन सा रिसोर्स कब कैसे कहाँ यूज करना है, अभी हम देखेंगे सॉफ्टवेयर पे भी. जब हम देखेंगे प्राइमवेरा की जो हमारी बात है, हाउ इजीली वी कैन ऑप्टिमाइज एंड हाउ इजीली वी कैन मैनेज अवर प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन, ऑल्सो द रिस्क. रिस्क आर नथिंग बट दे आर द अनसर्टेनिटीज. अभी जैसे आपने एक अपना बहुत बढ़िया सा प्रोजेक्ट प्लान बना लिया, बट आपने अनसर्टेनिटीज नहीं उसमें ध्यान में दी. बिकॉज अभी आज जैसे देखेंगे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बिकॉज कुछ अनसर्टेनिटीज तो हमारे को नोन होती है. जैसे हम लोग अभी भी अपने लिए, आप अगर रेगुलर रूटीन वर्क में देखेंगे तो भी प्लान सर्टेन कंटिजेंसी रिजर्व फॉर द अनसर्टेनिटीज. आपने मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस कुछ इस तरह से लेकर के रखा हुआ है. इवन फॉर प्रोजेक्ट ऑल्सो वी प्लान सर्टेन रिजर्व फॉर कवरिंग दीज अनसर्टेनिटीज. कि कोई अगर मशीन फेल हो रही है, कोई अगर रिसोर्स का इशू आ रहा है, हमारा मटेरियल टाइम पे नहीं आ रहा है, या पर्टिकुलर हमारे लिए हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए हमारे पास क्या एक्शन प्लान होगा, वो हम एडवांस में ही पूरा रिस्क मैनेजमेंट प्लान में अपना कवर करके रखते हैं, सो दैट वी आर नॉट इन अ डिलेमा, या हमको एक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इन केस दैट काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी हैपेंस इन अवर प्रोजेक्ट. Similarly, we have this procurement. Procurement is nothing but it is the whatever resources is not available within the organization,
जो हमको आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लेना होता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट। आप किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना है, वेंडर कौन होगा, उससे किस तरह का हमारा साइनिंग होनी है, वो सारी चीजें हमारी प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट पे भी टेक केयर ऑफ, कि प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। Then stakeholder management. Every project has got various stakeholders, so we have to ensure how we are going to manage and how we are going to engage. Because आपके लिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, कई बार आप अगर काम कर रहे हो प्रोजेक्ट टीम में, या आपका एक पर्टिकुलर क्लाइंट है या कस्टमर है, वो आपकी नहीं सुन रहा है, या वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है प्रोजेक्ट में, आपका प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, चेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उन सब चीजों के लिए हमारे पास एक पूरी प्लान स्ट्रैटेजी है जो स्प्रिंगबॉक में बहुत डिटेल वे में एक्सप्लेन की है। स्कोप ऑलरेडी यू नो, स्कोप में आपको क्या कंप्लीट करना है। स्कोप इज नथिंग बट इट इज द स्टेटमेंट ऑफ योर वर्क, व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू कम आउट विद अवर प्रोजेक्ट्स आउटकम। तो वहां पे हमारा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए 3 मेजर पैरामीटर्स होते हैं सक्सेस के लिए, स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट। हम प्रोजेक्ट की सक्सेस को इन 3 पैरामीटर पे ही मेजर करते हैं। अगर मान लीजिए हमारा एक प्रोजेक्ट था कि हमको एक बिल्डिंग 1 साल में बनानी थी, मगर वो हमने 1 साल की जगह 15 महीने में बनाई, बट हमने कंप्लीट वर्क करके दिया और बजट हमारा वही रहा, बट स्टिल वी विल नॉट से दैट वी आर सक्सेसफुल। हाँ, हमने हमारा स्कोप और कॉस्ट का जो टारगेट था वो तो मीट आउट करा है, बट ओवरऑल हमारे प्रोजेक्ट को हम सक्सेसफुल नहीं बोलेंगे, बिकॉज किसी भी प्रोजेक्ट की जो सक्सेस है वो 3 पैरामीटर्स पे मेजर होती है, स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट। सो इफ यू meet all these 3 last approved your targets, then you can say okay, you are 100% successful in your project. Every project has the quality measures also. Quality standards are different for different type of project, so we should know what are our quality metrics, हमें किस तरह से इंश्योर करना है, किस तरह से मेजर करनी है हमारे प्रोजेक्ट की क्वालिटी को। तो ये 10 नॉलेज एरियाज पे हम लोग फोकसली वर्क करते हैं। अगर आपने इन सब के लिए स्ट्रैटेजी, इन सब के लिए अपना रोड मैप बना लिया, definitely your probability of getting success in project is much more higher. So we are not going to cover this in detail because it is again a very ocean kind of thing. So we are straight away moving to our agenda, because for the managing of a project and to get the best solution, we have the project management tool. That is why nowadays project management solutions and project management concepts is much more in it's a big kind of buzzword in industry. Everybody is going for project management techniques or project management concepts in their day-to-day project handling, because आज के टाइम पे प्रोजेक्ट्स इतने सिंपल नहीं रह गए, प्रोजेक्ट्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, एंड जितने भी हमारे मैनेजमेंट है दे वांट वेरी गुड विजिबिलिटी ऑन द प्रोजेक्ट। उनको टाइमली रिपोर्ट और बहुत ही रियलिस्टिक वे में प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी चाहिए होती है। आपकी टीम डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, कई प्रोजेक्ट्स में आईटी के केस में दे आर नॉट लोकेटेड इन द सेम प्लेस, उनको किस तरह से हैंडल करना है, आप किस तरह से इंडस्ट्री के प्रोसेसेस, रेगुलेशंस को करोगे कवर। अभी जैसे आपने देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में वी हैव टू कंसीडर ऑल रेरा रूल्स, एवरीथिंग इनटू इट। So sometimes customer engagement और customer interference is too high that हम लोगों के लिए काम करना काफी मुश्किल हो जाता है। So we are going to take care of how we can overcome these challenges by using the project management tools or the best practices. So Primavera is the most powerful software, we should say. It is the kind of tool which every project industry is using to manage their project. So Primavera was started in 1983 by Primavera Systems, but it is now taken over by the Oracle. So that is why we call it as an Oracle's Primavera, which is very good for managing your project as well as the complete portfolio of your company. इसकी इंटीग्रिटी जो है, आप किसी भी कोलैबोरेशन इसका है SAP के साथ और दूसरे जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं Oracle के अदर प्रोडक्ट्स के साथ में, it can be easily merged with them. So that is the beauty of this software. So it can be used, it project management tool जो है Primavera, it can be applicable to any kind of industry, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हो, चाहे वो स्मार्ट सिटीज, रियल स्टेट्स की हो, आपके पावर सेक्टर की हो सकती है, टेलीकॉम सेक्टर की हो सकती है, ऑयल एंड गैस की हो सकती है, ऑटोमोबाइल की हो सकती है, फार्मास्यूटिकल्स हो सकती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। नो जैसे मैंने बोला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमको सबसे इम्पोर्टेंट जो चैलेंज हमारे लिए होता है, फर्स्ट थिंग इज कि यू शुड नो व्हाट यू हैव टू डू। आपका ऑब्जेक्टिव और आपको जो प्रोजेक्ट का जो हमारा स्कोप है, हमारा स्कोप क्या है, that is the most important thing. If you know okay, what you are going to do out of this project, so we should define our clear cut objectives. वो आपने डिफाइन करना है। देन आप उसको किस तरह से इंश्योर करेंगे, आप उसको किस तरह से करेंगे कि हमें कैसे इसको इजीली टाइम पे कंप्लीट करना है,
कौन से resources हमें कब कितने चाहिए, and how we are going to carry out these activities, when we are going to carry out it. So all those things are the questions which can be taken care by this particular software. So Primavera will help you in managing simple to complex project, any type of project. You can easily manage the project resources. You can manage your project from anywhere, anytime. That kind of real-time application it is. You can track your project with the proper utilization of cost and resource. Reportings are very, I should say the real-time type of reports or analytical reports are there, which will be helping you in taking care of your next course of action. जो हमें forecasting मिलती है, फोरकास्टिंग रिपोर्ट, उसके बाद में आप अपना नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन बहुत इजीली प्लान कर सकते हो, एंड डेफिनेटली यू कैन इंश्योर द प्रोजेक्ट डिलीवरी सक्सेस फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट. It is very easy, it's not at all tough, and we'll see on the software also how easily we can develop our plan, schedule, and the other features of our project. So this is our brief profile. We are 32 years old company which is into this training sector, as well as we are into the consultancy also. So in Lucknow we are running this center since last 18 years, and we have worked with many of the government companies as well as private sector. आपका लखनऊ मेट्रो के साथ वर्क किया, टाटा प्रोजेक्ट्स हो गया, LNT हो गया, निर्माण निगम के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, NKG है. So we have worked with Brahmaputra also, Sahara people. So a lot of companies we have worked with on their projects since last 18 years in the training as well as in the project management also. So Primavera is right now the latest version what it is using, C19. P6 we call it as, but if you have even Primavera 8.2 or 16 or 17, 19, it is all same. There is no much difference in that. So you can definitely, whatever version you have, so from 7.2 onwards, if you know 7.2, you can easily work on even 19 as well. That is as easy as there. So let's move to our software. So we'll see how we can start working on a particular software. So I'll showcase you my Primavera software. So I hope my Primavera screen is now visible to you. So I have shared with the Primavera version. So this is the initial screen. As I told you, Primavera is used for managing project as well as a portfolio. So you can see there is a company called All Initiative, which has got various divisions like engineering and construction, energy services, manufacturing, product development, IT. So these are some of the departments where they are working with, and these are all projects like under engineering and construction. They are running these many projects. Under energy services, they have got these many projects. So there are various projects which are going on, and you can see the budget also for each project. What is the start date? What is the finish date? Just like so, you can open any of these projects and check what the details of a particular project. And in case you want to start up with a new project, you can open a new project, and then you can see the details of a project. So you can open any of the projects. So we'll just start with the how easily I have just a small project. I'll show you what all the features we should know. So it's a very simple project I'm going to show you. Otherwise, I'll share the other project also later on. See, first thing in every project is the first level of planning. It is a very small project I have taken for a construction of a just one-story building, you should say. So where we have got some major work like say foundation work, superstructure work, internal finishing, exterior finishing. So I just take a small, the minimum work, minimum scope what every project of a construction will consider. So then we should have this is the major work. Under foundation, what all activities we are going to do. So I have listed out certain activities. So we are going to do this drawing work, layout, earthwork, anti-termiting, PCC. These are all construction activities. Now see, I'm just giving you an example
for a construction project, but it is not like that it is only for the construction. It can work for any type of project, for refinery project, for manufacturing project, for anything. So I'm just, because the scope would be different. Like right now I'm taking the building example, so definitely my activities would be related to that. So I've listed out certain activities. So these are the activities, and then I've specified the estimated time duration for each activity. How much time this activity is going to take. So once you know what is the time duration, next thing is that this is how superstructure work. Only one floor I have taken. I'll show you how easily we can construct a plan for even 5 floor or 6 floor or 13 floor easily. Internal finishing work, exterior finishing work. So just some main activities I have listed out. And then what is the next step is that in developing a realistic schedule, once you know the duration, and every activity cannot start parallelly, so there has to be certain logic, or we should call it as a relationship or the dependency, because the dependency has to be defined by the project team, because there are few people who are good in the multitasking, or they have multiple resources, they can work parallelly, but in case we have a limited resources, we have to take care of those resources, and then we decide upon the dependency. आपके प्रोजेक्ट की रिलेशनशिप एक्टिविटीज की क्या होगी वो हम डिसाइड करते हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दैट बाय व्हिच वी कैन असाइन द टू आवर एक्टिविटीज. लाइक जैसे अभी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जो डिपेंडेंसी आप रिलेशनशिप लाइंस यहाँ देख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं गैंट चार्ट, bar chart, Gantt chart, CPM chart, like because I put out the relationships and also I can easily call it as a Gantt chart as well as the CPM chart, critical path method. Because project में हम लोग critical path method ही follow करते हैं, because we are going to find out the critical activities so that we know we can complete our work on time and resources. अगर critical activities को आपने time पे complete कर दिया, आपका project भी time पे complete होगा. Critical activities में आप एक भी दिन का delay नहीं afford कर सकते हो. All those things you study in your engineering. We are providing online classes also for Primavera, Ashish. And how can we define the critical path in Primavera? See, critical path का concept अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है, जैसे ही आप किसी भी activities में अपना ये प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड हम बनाते हैं ना, कौन सी एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको आपका टाइम पता है कि आप हफ्ते में 6 दिन काम कर रहे हो, 7 दिन काम कर रहे हो, बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइड अपॉन द अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट फिनिश. अब ब्यूटी क्या है सॉफ्टवेयर की, आपको ये फॉर्मूले या ये सब रटने की जरूरत नहीं है. दो हम जब पढ़ाते हैं आपको तो वी एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट. यहाँ पे क्या होता है कि आपने हर एक्टिविटी का जब रिलेशनशिप सेट कर दी कि कौन सी एक्टिविटी का प्रेडिसेसर टास्क क्या होगा या सक्सेसर क्या होगा. जैसे यहाँ पे हमने दिया है लेआउट का प्रेडिसेसर है प्रिपेयरिंग ड्राइंग. जब ड्राइंग्स हमारी बन जाएगी उसके बाद हमने लेआउट किया, उसके बाद हमारा अर्थवर्क स्टार्ट हुआ, एंड डेफिनेटली अर्थवर्क हमारा जो है वो खत्म हो रहा है 12 अगस्त को, और उसके बाद आपने एंटी टर्माइटिंग स्टार्ट किया. तो ये आपके रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप हम लोग रिव्यू भी कर सकते हैं कि आपको अगर लग रहा है कि हमको एग्जैक्टली फिनिश होने तक वेट नहीं करना है अर्थवर्क का, हम 2 दिन पहले हमारी एंटी टर्माइटिंग भी स्टार्ट कर देंगे जहां जहां का हो चुका है, तो वो हम लोग लॉजिक अपना लीड एंड लैग स्पेसिफाई करते हैं. तो जब आपने रिलेशनशिप दी, हर एक्टिविटी की आपको टोटल फ्लोट मालूम पड़ता है. टोटल फ्लोट एज यू ऑल नो इज द नंबर ऑफ डेज वी कैन डिले एन एक्टिविटी विदाउट इफेक्टिंग द फिनिश डेट ऑफ योर प्रोजेक्ट. आप किस एक्टिविटी को कितने दिन तक डिले कर सकते हो प्रोजेक्ट की फिनिश डेट को चेंज किए बिना, दैट इज नोन एज द टोटल फ्लोट. तो जिस एक्टिविटी में टोटल फ्लोट हमारा 0 डेज होता है वो एक्टिविटी हमारे लिए क्रिटिकल होती है. सो क्रिटिकल एक्टिविटीज में हम एक भी दिन का डिले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको टाइमली कंप्लीट करना जरूरी है. अभी जैसे वॉल कॉन्ट्यूटिंग में हमारे पास 7 डेज का डिले मिल रहा है, 7 डेज का फ्लोट है. इसको अगर आप 7 दिन भी डिले करोगे तो भी आपके प्रोजेक्ट की फिनिश डेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. बट जो भी एक्टिविटीज हमारी क्रिटिकल है, 0 डेज जिन पे फ्लोट है, उसमें हम एक भी दिन का डिले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो क्रिटिकल पाथ का सिग्निफिकेंस यही होता है, क्योंकि अगर जैसे अभी हम देखेंगे हमने जब रिलेशनशिप दे दी और ये प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन मेरी आ रही है वो आ रही है 238 डेज. फाउंडेशन हमारा 102 डेज है, सुपरस्ट्रक्चर 89 डेज में कंप्लीट हो रहा है, इंटरनल फिनिशिंग कब कंप्लीट हो रही है. तो यहाँ पे अब आपके ऊपर है, जैसे आपने मैंने अभी एंटी टर्माइटिंग में क्या दिया, जस्ट आई सेड दैट ओके एंटी टर्माइटिंग जो हमारी है वो हम लोग 2 दिन पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं एक्सकेवेशन फिनिश होने के. तो जैसे ही मैंने अपनी एंटी टर्माइटिंग को सी ड्यूरेशन मेरी 250 डेज,
सिमिलरली पीसीसी आपको लग रहा है कि एंटीटर्माइटिंग खत्म होने तक हमें वेट नहीं करना है, हम उसके 3 दिन पहले हमारा स्टार्ट कर देंगे जहां जहां का हो चुका है। सो यू कैन इजीली कैलकुलेट कि अब आपका प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हो जाएगा, और हर एक्टिविटी की स्टार्ट फिनिश डेट भी अपने आप चेंज हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी वर्क ऑन द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आपको कोई भी कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं होती है। मोस्टली क्या होता है, कई बार जब आप काम करते हैं तो एक्सेल पे कर रहे हैं बहुत से लोग, बट एक्सेल पे क्या होता है कि चीजें आपके लिए फ्लेक्सिबल नहीं रहती है। हम लोग फॉर्मूला डाल के स्टार्ट फिनिश डेट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे मेरा अभी मैंने प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट जो भी रखी है, अगर मुझे लग रहा है कि मेरे प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट चेंज हो जाएगी तो मेरा प्रोजेक्ट कब शुरू होगा कब खत्म होगा इजीली आई कैन चेंज। कि अगर मैं प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल अपना 1 जुलाई से स्टार्ट करूं या 15 जुलाई से स्टार्ट करूंगी, हर एक्टिविटी की वो डेट्स अपने आप चेंज कर देगा। आपका प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, अब 15 जुलाई से हमारा 24 जून तक कंप्लीट हो पाएगा, तो वहां आपको सारी चीजें और उसमें सारा कुछ वो अपने आप ही रिकैलकुलेशन हो जाएगा। जो भी चीजें आपके ऊपर है, क्योंकि ये सब चीजें हम पढ़ेंगे जब हम लोग शेड्यूल बनाते हैं रियलिस्टिक, और ये शेड्यूल बनाते टाइम पे जो हम ड्यूरेशन देते हैं, डेफिनेटली क्या होता है आज के टाइम पे क्या है, आप देखेंगे सीनियर मैनेजमेंट इज ऑलवेज बस उनको एक ही है, नहीं हमें टाइम पे काम चाहिए, टाइम पे काम चाहिए। अब उसके लिए दे आर नॉट रेडी टू लिसन, क्योंकि क्या होता है अभी हम लोग पेपर पे अपना वर्क करते हैं कि हाँ सर ये काम हम इतने दिन में कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अर्थवर्क है, अर्थवर्क की मेरी क्वांटिटी कितनी है और मैं उस पर क्या यूज कर रही हूँ, कितनी जेसीबी लगा रही हूँ या मैनुअल कर रही हूँ, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, उसके बेसिस पे ड्यूरेशन आएगी, isn't it? अब मुझे हमारी रेनफोर्समेंट करनी है। अब मुझे रेनफोर्समेंट में अगर पता है कि मेरे को अगर 250 क्विंटल सरिया बांधना है तो उसमें मुझे कितने रिसोर्स लगेंगे, तब जाकर के मैं कितने दिनों में कंप्लीट करूंगी। तो वो सब चीजें हमारी जो रियलिस्टिक होती है, क्योंकि जो भी एक्टिविटी है जब हम शेड्यूल की बात करते हैं तो शेड्यूल में 2 चीजें होती है, टाइम तो होता ही होता है, साथ ही साथ कॉस्ट भी आती है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हमने बार वेंडर हेल्प पर कितना स्टील आपको रिक्वायर्ड है इस एक्टिविटी पे, ये हम लोग एक डिटेल एस्टिमेट जो हमारा बनता है कि आपके जो डिटेल एस्टिमेट के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं हमारी कितनी क्या क्वांटिटी है, उसके हिसाब से हमारी ड्यूरेशन आएगी। सी सरोज, जो ड्यूरेशन एस्टिमेशन की टेक्निक्स होती है, देयर आर वेरियस मेथड्स। एक होता है पैरामेट्रिक अप्रोच। जैसे पैरामेट्रिक अप्रोच में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मेरी स्पीड जो है मैं 1 पेज 1 मिनट में रीड कर लेती हूँ, अगर मुझे 500 पेज रीड करना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा, इस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। सिमिलरली कुछ थंब रूल होते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर वर्क में इतना टाइम लगेगा, इतने क्यूबिक मीटर वर्क है तो इतना लगेगा। या आपको पता है आपने प्रायर एक्सपीरियंस के बेस पे, इसको हम बोलते हैं एनालॉगस टेक्निक, कि हमने कई बार, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में हम लोग ये काफी बार पहले कर चुके होते हैं, तो हमारे पास डेटाबेस पहले से अवेलेबल होता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है, तो हम लोग हमारे नेट से या आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में डेटाबेस होता है, तो उसके बेस पे हम लोगों को मालूम है कि ये वर्क हमने मैक्सिमम टाइम इतने दिनों में कंप्लीट किया है। उस बेसिस पे हम ड्यूरेशन एस्टिमेट करते हैं एक्टिविटी की। तो इट इज अ काइंड ऑफ एस्टिमेट। अगर आप बहुत ही इनिशियल लेवल पे प्लानिंग कर रहे हो, आपके पास बहुत ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है एक्टिविटी की क्वांटिटी जो वो सब, तो हम लोग हमारा प्रायर एक्सपीरियंस के बेस पे या एक्सपर्ट्स एडवाइस ले लेते हैं जिनको आइडिया है इस तरह के काम का कि कितना टाइम मिनिमम लगेगा, उस बेसिस पे हम प्लान करते हैं। वंस थिंग्स बिकम्स क्लियर कि हमारे पास क्वांटिटी आ गई कि हमको इतनी क्वांटिटी में काम है, इतने रिसोर्स लगा रहे हैं, तब हम ड्यूरेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो ड्यूरेशन एस्टिमेशन की टेक्निक्स होती है किस लेवल पे आप काम कर रहे हो। अभी आप बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पे हो, बहुत ही इनिशियल लेवल पे हो, आपके पास ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो हम एक रफ एस्टिमेट एक लेकर के चलते हैं। जैसे फाउंडेशन में आपने अप्रोक्सीमेट टाइम ले लिया, जो हम लोग यहाँ पे जब हमारा मेजर पैकेज बनाते हैं ना कि फाउंडेशन में आपको कितना टाइम लगेगा, तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं कि आपको कब शुरू करना है, कब खत्म करना है, एंटिसिपेटेड टाइम आपका कितना लगेगा, वो हम अपना एक एस्टिमेटेड, मतलब एक रफ एस्टिमेट आपका वो बन जाएगा। बट जैसे जैसे हमारे पास डिटेल्स अवेलेबल होती जाती हैं, हम डिटेल्स अपने प्रोवाइड करते जाएंगे, वी गेट मोर एक्यूरेट शेड्यूल फॉर अवर प्रोजेक्ट, मोर रियलिस्टिक शेड्यूल फॉर अवर प्रोजेक्ट। अभी जैसे मैंने हर एक्टिविटी पे मुझे मालूम है कितनी क्वांटिटी है, उसके हिसाब से मैंने सारे रिसोर्स भी लगा दिए कि मेरे को कितने मेसन चाहिए, पर डे काम करेंगे, कितना मटेरियल मुझे पर डे मेरा लगेगा। वो सारी चीजें जब आप लगा दोगे, इसमें हम लोगों के पास ऑप्शन होता है
पूरा एक अपना रिसोर्स शीट आप पहले से बना सकते हो प्रोजेक्ट के लिए, और ये रिसोर्स शीट आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। इट इज नॉट दैट आपको हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग बनाना है, बिकॉज ये एंटरप्राइज स्पेसिफिक डेटा है प्राइमवेरा में। आपका अगर आप, मैं अभी लखनऊ में बैठ के अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, मेरे बॉस को दिल्ली से रिपोर्ट देखनी है, वो दिल्ली में बैठ के सर्वर से रिपोर्ट चेक कर सकता है। प्राइमवेरा में हम लोग क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन पे वेब बेस्ड काम भी होता है। आपको सिस्टम लैपटॉप हर जगह कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी अपना यूआरएल डाल करके प्रोजेक्ट की एक्सेस ले सकते हो। इसमें हमारे पास वो उस लेवल तक के भी अवेलेबल होते हैं, जो जिस लेवल पे आप सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हो उसके हिसाब से। अब हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्योंकि अगर आपको खुद एक डिटेल एस्टिमेट बनाना है, अपना इंडिपेंडेंट एस्टिमेट बनाना है कि मुझे अगर घर बनाना है तो कितनी कॉस्टिंग बैठेगी, तो आपके जो भी लेबर रेट्स हैं वो आपने डाल दिए कि 400 रुपए पर डे या 500 रुपए पर डे पे अवेलेबल है, सीमेंट का क्या रेट चल रहा है, ब्रिक्स का क्या रेट चल रहा है, तो जो भी आपने अपने रिसोर्सेज की रेट्स डाल दिए, उसके बाद जब आप एक्टिविटी पे अपना एक एस्टिमेटेड डालोगे, यू विल बी एबल टू गेट कि मेरे इस एक्टिविटी पे लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है, मटेरियल कॉस्ट कितनी आ रही है, मशीनरी कॉस्ट कितनी आ रही है। अभी जैसे मैंने जेसीबी की कॉस्ट इसलिए नहीं ली क्योंकि जेसीबी अगर हमारी खुद की है तो उसकी कॉस्ट 0 है, खाली जेसीबी ऑपरेटर की कॉस्ट लगेगी। बट अगर आपने मान लीजिए रेंट पे लिया हुआ है और आपको 700 रुपए पर घंटा आप जेसीबी को यूज कर रहे हो, तो उसके बेस पे वो आपकी नॉन लेबर कॉस्ट जहां जहां जेसीबी लगी होगी वहां पे वो आपकी पूरी पूरी कॉस्ट भी कैलकुलेट कर देगा। I'll just take up these questions later on from software and all, from where you can purchase all these things. See, now I have got the non-labor cost as well. So मेरी एक्टिविटी पे लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, नॉन लेबर एंड दिस इज द टोटल कॉस्ट। इसके अलावा इवन आपके जो और दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रैवलिंग, ट्रेनिंग, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वो सब भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी इजी वे में। अभी आपके पास जो मिनिमम हमारे कॉस्ट के लिए जो रिसोर्सेज के बेस पे आती है वो कैसे आती है, और यही चीज अगर आपने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे करा रहे हो तो आपको क्या है, उसमें भी अलग अलग तरीका होता है कि मटेरियल आप दे रहे हो, बाकी कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर की है, तो हम कैसे करेंगे, या आपको पूरा पूरा अपने कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे काम है, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है कि इतनी क्वांटिटी है, पर क्वांटिटी हम आपको इतना पे कर रहे हैं, बाकी रिसोर्सेज पूरे वो रिसोर्सेज जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को लगाने हैं, आपका उसको कोई सिरदर्दी नहीं है, तो फिर आपकी रिसोर्स कॉस्ट 0 हो जाएगी। बट स्टिल आपको रिसोर्सेज पता होने चाहिए। व्हाई? बिकॉज सी मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जैसे अभी हम लोग जो फेस कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करते हैं, अभी जैसे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, हाईकोर्ट का जब हम लोगों ने किया तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आई थी। उन लोगों ने क्या किया, सारा काम कॉन्ट्रैक्टर का था, बट अब कॉन्ट्रैक्टर तो बोल देता है हाँ सर हो जाएगा, इतने दिन में कर देंगे। अब कॉन्ट्रैक्टर के जो रिसोर्स लगे हुए थे, जब हमने चेक किया तो वो रिसोर्सेज उसने उतने लगाए ही नहीं थे जितनी रिक्वायर्ड थी क्वांटिटी के हिसाब से। क्योंकि क्या होता है, आपने बोला कि मुझे अगर इतना टन सरिया बांधना है, आप बोलोगे मैं तो 2 दिन में बांध दूंगा। अब 2 दिन में बांधने के लिए आपके पास मालूम भी तो होना चाहिए कि मेरे आउटपुट एक लेबर का कितना है, तो मुझे कितने आयरन वर्कर या कितने बारबेंडर होने चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने बोला कि 100 लगा करके 1 दिन में कर देंगे। 100 लगाने के लिए आपके पास साइट पे जगह भी तो होनी चाहिए। तो आपको यू शुड नो कि मेरी मिनिमम जो है वो रिसोर्स की, मतलब मेरे मैं कितना तक यूज कर सकता हूँ इन अ डे, तो उसके बेसिस पे हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं पूरा। दैट इज व्हाई वी गेट अ रियलिस्टिक शेड्यूल। अब अगर आपसे आपका बॉस बोलता भी है कि तुम इतना दिन क्यों लगा रहे हो करने के लिए, आप बोल सकते हो कि सर कास्टिंग करनी है, मेरे को लेबर्स का इतना रिक्वायरमेंट मेरा पर डे मैंने लगा रखा है। अब आप बताइए, आपको अगर लगता है कि इससे ज्यादा मैं लगा सकता हूँ मेरी साइट लोकेशन के हिसाब से, देन इट इज ओके। तो यू कैन टॉक विद द फैक्ट्स, यू कैन टॉक विद द फिगर्स। तो यहाँ पे आप कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहे हो, यू आर बेसिकली talking on the like the with the figures and the fact that what I have done, and उधर आपकी क्या गुंजाइश हो सकती है, how they can give their inputs, definitely you can work on that and you can come to your optimum duration of the project. तो अभी आपने जब रिसोर्स लगा दिया, आपको मालूम है कि अब मेरे को प्रोजेक्ट की हर एक्टिविटी की कॉस्ट होकर के रोल अप होती जाएगी। वो आपके जैसे सुपर स्ट्रक्चर की कॉस्ट मेरी टोटल कितनी आ रही है, फाउंडेशन की कॉस्ट कितनी आ रही है, फिनिशिंग में कॉस्ट मेरी कितनी आ रही है, यहाँ पे हमने पूरा डिटेल बनाया हुआ है। दिस इज व्हाट वी हैव डन द बॉटम अप एस्टिमेशन। हमने हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट निकाली है, उसके बाद हम उसको ऊपर अराइव कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपको ड्यूरेशन कम करनी है तो डेफिनेटली आपको ड्यूरेशन कम करने के लिए क्या टेक्निक्स होती है वो भी हम पढ़ते हैं। फास्ट ट्रैकिंग, क्रैशिंग होता है, या तो आपको एक्टिविटीज पे रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे जहां बढ़ा सकते हो, या आपको जो एक्टिविटीज एक के बाद एक हो रही है उनको पैरेलल करना होगा, और वो हमें सब क्रिटिकल पाथ पे ही करना पड़ेगा, तभी आपकी ड्यूरेशन ऑप्टिमाइज होगी, अदरवाइज नहीं होगी।
तो वो सब चीजें आप इसमें इजीली करके देख सकते हो। अभी जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट का कैलेंडर है वो कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड फुल टाइम है। जैसे अब इसमें मैं मेरा जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन तो 244 डेज आ रही है और मेरा प्रोजेक्ट 15 जुलाई से शुरू होकर 21 जून 2021 को जा रहा है। अब इन केस मैं अपना थोड़ा सा कैलेंडर 2 घंटे बढ़ा दूं, सो व्हाट आई कैन सी मेरा उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी जैसे जो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है 21 जून 2021 को, आई जस्ट मेक श्योर कि मैं अगर 7 दिन काम कर रही हूँ और अभी जैसे मैंने किया इसको पर डे मैं 11 घंटे की जगह 10 घंटे काम करना चाह रही हूँ, आई जस्ट चेंज माई 1 आवर, मैंने 10 घंटे काम किया खाली। तो अब उससे मेरा क्या शेड्यूल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जो पहले मैं 8 घंटे काम कर रही थी, अब मैंने 10 घंटे का शेड्यूल बनाया और 7 दिन का। अब देखिए मेरा प्रोजेक्ट 26 जनवरी 2021 को ही खत्म हो रहा है अगर मैं 7 डेज वर्किंग कर रही हूँ तो इस तरह से आप व्हाट इफ एनालिसिस यू कैन हैव मल्टीपल सिनेरियोस फॉर योर प्रोजेक्ट। आप अभी जैसे क्या केस हुआ, अभी इसमें हमने क्योंकि लॉजिक पे वर्क किया है, अभी जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम अभी आपने देखा जो पेंडेमिक कंडीशन की वजह से साइट पे 1 महीने 2 महीने 3 महीने का सस्पेंशन रहा, वो भी आप इसमें डाल करके ताकि आगे का हमारा फोरकास्ट क्या बन जाएगा वो सब चीजें हम इसमें इजीली कर सकते हैं। अब आपके हिसाब से आपके मैनेजमेंट ने इस प्लान को ओके कर दिया, ठीक है, हमारा जो डेडलाइन थी वो मीट आउट हो रही है और हमारा इसमें जो भी हमारी अनसर्टेनिटीज भी हम लोग अपना पूरा रिस्क कवर करते हैं कि जिससे हमारे को अगर मालूम है कि प्रोजेक्ट जून में कंप्लीट करना है तो हम हमारा जो कंटिजेंसी प्लान होता है जो हमारी अनसर्टेनिटीज को कि नहीं कभी मटेरियल लेट हो रहा है, कभी कोई रिसोर्स का इशू है, ये तो हम लोग एक अपना रिजर्व टाइम लेकर के चलते हैं उसको। जो कुछ तो अनसर्टेनिटीज नोन होती है, कुछ अननोन होते हैं, जैसे ये हमारा कोविड-19 ये तो किसी के लिए भी बिल्कुल अननोन सा अनसर्टेनिटी था, नोबडी हैज प्रेडिक्टेड। तो अब इस टाइम पे हम लोगों को इसके लिए एक लेवल तक हम लोग लिमिट रखते हैं रिजर्व, बट उसके बाद अब हमारे को हमारा प्रोजेक्ट का जो प्लान है वो रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि आपको मालूम है हमने इतना ज्यादा नहीं प्रेडिक्ट किया था कि इतनी ज्यादा ये प्रॉब्लम हो सकती है। उस केस में आपके लिए रिवाइज प्लान आपको बनाना होगा ताकि ये टारगेट अब हमारा रिवाइज होगा। तो इसमें वो सब चीजें हम लोग करेंगे। आई जस्ट शो यू हम किस तरह से प्रोजेक्ट को अपने बना तो दिया, अब आप जब एग्जीक्यूट करोगे अपडेट करके हम कैसे हमारे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग भी करेंगे। अब जब मैंने यहाँ तक कर दिया, आई कैन मेक श्योर कि मेरे को कौन सा मटेरियल या कौन से रिसोर्स कब कितने चाहिए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्रोजेक्ट का इन्वेंट्री मैनेजमेंट और प्रोक्योरमेंट प्लानिंग के लिए, क्योंकि आपको यही नहीं पता अगर होगा कि आपने पता चला आज पूरा एक अपना 100 किलो सरिया या 200 किलो सरिया जितने भी मंगा के रख लिया, बट यहाँ पे हमारे पास पूरा एक प्लान, आज के टाइम पे सब लोग जस्ट इन टाइम और लेस इन्वेंट्री पे वर्क कर रहे हैं, तो आपके पास आपका वीकली प्लान, मंथली प्लान जो भी आपको चाहिए वो सब हम निकाल सकते हैं कि आपको किस मंथ में कितना मटेरियल चाहिए होगा या किस डे में, डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज, उसके हिसाब से हम हमारी प्रोक्योरमेंट करेंगे। आपको स्टील कितने टन किस मंथ में चाहिए आपने निकाल लिया, आपको बारबेंडर कितने कप किसी में चाहिए उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू, मैकेनिकल में आपका कोई रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट है, आपको कोई अगर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसका प्रोजेक्ट हो सकता है, सो केबल लेइंग का प्रोजेक्ट है, इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी प्रोजेक्ट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल जहाँ पे एक्टिविटीज आपकी पूरी उस रिलेटेड आ जाएंगी। आपको मान लीजिए एक नया कार का डिजाइन तैयार करना है या आपको एक अपना पूरा फैब्रिकेशन का वर्क है प्रोजेक्ट मिला हुआ है, आपको एक शॉपिंग मॉल में पूरा HVAC डक्टिंग का काम मिला हुआ है, दैट इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट, इट इज इररिलेवेंट कि आप चाहे सिविल फील्ड से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इवन IT पीपल, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, खाली आपकी एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज डिफरेंट हो जाएंगे वहां पे, राइट। सो definitely this software is used for all type. That is why initially in the beginning I asked कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे देंगे तो मैं एग्जांपल उसमें से अभी आपको दिखा दूंगी। सो यहाँ पे आपको हर रिसोर्स का मालूम पड़ रहा है कौन सा, और वो भी डिटेल भी कि वो हमारा किस एक्टिविटी में आपको चाहिए, तो वो भी हम लोग पूरा निकाल सकते हैं। तो ये हमको जो चाहिए है वो आपका पूरा, जैसे कारपेंटर कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, आपके बारबेंडर कहाँ पे लगे हुए हैं, JCB हमने कहाँ कहाँ लगाई, वो एक्टिविटी और उसका पूरा डिटेल कि हमें किस मंथ में कितना चाहिए और किस एक्टिविटी पे चाहिए, वो सीमेंट हमारा किस मंथ में कितना चाहिए और किस किस एक्टिविटी पे यूज करें। तो जितना डिटेल वे में आपको देखना है वो आप अपना प्लान पूरा निकाल सकते हैं।
सिमिलरली अभी मुझे ये तो यूनिट्स का आ रहा है, आई वांट टू सी माय कैश फ्लो, मुझे कब कितना फंड मैं खर्च कर रही हूँ. All those things we should we can customize that. Okay, I'm not going to do with the units. मुझे कॉस्ट देखनी है कि मेरी प्लान कॉस्ट किस मंथ में कितनी जा रही है, एंड ऑल्सो वी कैन गो विद अवर क्यूमुलेटिव कॉस्ट ऑल्सो. जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, अभी जैसे ये मेरी मंथ वाइज आ रही है और मुझे पूरे प्रोजेक्ट की चाहिए, नॉट एक्टिविटी वाइज या रिसोर्स वाइज. आप अपने हिसाब से पूरा इसमें कर सकते हैं. ये आपके पूरे प्रोजेक्ट का आ गया. अगस्त में हम कितना खर्च कर रहे हैं, सितंबर में कितना, अक्टूबर में कितना, नीचे क्यूमुलेटिव कॉस्ट उसका आ रहा है. आई होप इट इज विजिबल. Let me increase the font size. So now I think it is more visible. तो ये हमारा मंथ का टोटल आ रहा है. So it is up to us कि आपको किस तरह से देखना है आपका कैश फ्लो. ये हमारा WBS वाइज आपको देखना है तो WBS फाउंडेशन में हमारा कहाँ, जैसे जो टोटल सितंबर का हमारा एक्सपेंडिचर आ रहा है वो हम कहाँ खर्च कर रहे हैं. नवंबर में हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, बिकॉज हमारा जो प्रेडिक्शन होता है प्रोजेक्ट के टाइम कंप्लीशन या बजट उसका, वो उसी कंडीशन पे होता है कि हमको मटेरियल टाइम पे मिलता रहेगा, फंड्स टाइम पे मिलते रहेंगे, उसी कंडीशन पे हम टाइम पे कर पाएंगे. तो यू नो वेयर यू आर स्पेंडिंग व्हेन, so you can easily give this kind of report and you can ensure that you would be provided fund and resources as per your requirement, so that you can ensure the timely completion of your project. So this view, resource assignment view, is a wonderful view by which we can do the any kind of analysis for our project. Similarly, we can even view the resource histogram. आपका कौन सा रिसोर्स कब कितना कहाँ काम कर रहा है, वो सारे चीजें आप इसमें इजीली निकाल सकते हो, डे वाइज, वीक वाइज, सब तरह से हम, कि हमने जो रिसोर्सेज अपने डिफाइन करे हैं वो हमारे कहाँ पे कितने यूज हो रहे हैं, लिमिट कितनी है और कितना हमारा यूज हो रहा है. आरएमसी आपके पास एक प्लांट है, दो है, उसके हिसाब से हमारी कितनी कहाँ कंज्यूम हो रही है. ऑल दोज थिंग्स वी कैन डू इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग. एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप लोगों को मालूम होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एस कर्व. आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस एस कर्व. एस कर्व जो हमारा होता है वो होता है हाउ यू आर स्पेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट. ये क्यूमुलेटिव कॉस्ट का अगेंस्ट टाइम, दैट इज व्हाट वी प्लॉट इन द एस कर्व. तो वो आपका प्रोजेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, या हमारा जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट के, जो हमारी कॉस्ट बेसलाइन है वो हमारी पूरा एस कर्व. जैसे यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, दिस वन, दैट इज द एस कर्व. वीक वाइज ले रही हूँ. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा है कॉस्ट का, ग्रीन वाला, हाउ यू आर स्पेंडिंग, तो उस तरह से आप इसमें देख सकते हैं आपके प्रोजेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन. तो दिस इज हाउ वी हैव डन द प्लान. एंड नाउ आपके पास जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स होती है, प्रोजेक्ट की आपको जो अपडेट एंड मॉनिटरिंग देखना है, प्लान वर्सेस एक्चुअल, कि आपने क्या प्लान किया था, ये मेरा टारगेट प्लान था, मैंने इसको सेव कर दिया टारगेट को. अब मैं देखूंगी कि मेरे जो वेरिएंसेस आएंगे वो किस तरह से आएंगे, कि प्लान में क्या था और एक्चुअल में मैं कहाँ पे हूँ अभी. हाउ वी डू दैट, आई जस्ट शो यू द फास्टेस्ट वे. मैं ऑटोमेटिक अपडेशन करके आपको दिखा देती हूँ कि अगर हमने प्रोजेक्ट मान लीजिए मॉनिटर करना चाह रहे हैं हम 25 अगस्त तक, हमारा क्या स्टेटस होगा. तो 25 अगस्त तक का हमारा जो जो एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी होंगी वो आपकी ब्लू में आ रही हैं, और यहाँ पे हमारी बेसलाइन भी हम शो कर देंगे. तो ये हमारा नीचे, क्योंकि अभी मैंने ऑटो अपडेट कर दिया, जो हमारा प्लान में था वही हमारा अपडेट में आ रहा है. थोड़ा सा मैं ब्रॉड कर देती हूँ. जो नीचे येलो लाइन दिख रही है दैट वाज द बेस लाइन, टारगेट लाइन, कि ये हमारे टारगेट में था. अभी मैं कुछ चेंजेस करके दिखाती हूँ हाउ इजीली वी कैन सी कि आपने कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट की, कब खत्म की, वो आपको अपडेट करना होता है. इसमें साइट से हम जो डेटा लेते हैं कि मैंने कौन सा काम कब प्लान किया था, एक्चुअल में मैंने कब स्टार्ट किया, कब फिनिश किया,
वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब आप अपडेट करेंगे तो वो आपका पूरा चेक करके दिखा देगा वेरिएंसेस। अभी जैसे ये एक्टिविटी है, अभी मान लीजिए ये एक्टिविटी मेरी स्टार्ट ही नहीं हुई है, और अब मेरा क्या फोरकास्ट हो जाएगा इस प्रोजेक्ट का, वो आप इधर पे देख सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। अभी आप देखेंगे हमारा ये पूरा जो वर्क है, क्योंकि इसमें डिले हुआ तो सारी एक्टिविटीज उसने शिफ्ट कर दी, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से जो डिपेंडेंसीज थी उसके बेस पे उसने सारा, जो रेड लाइन आ रही है ये हमारी बेस लाइन थी, येलो वाली टारगेट था, अब ये हमारी एक्चुअल फिनिश डेट हो जाएगी इस एक्टिविटी की। अब या तो आपको वही है किस तरह से इसको वापस ट्रैक पे लाना है, ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लग रहा है ये कंडीशन अभी हमारी नहीं इंप्रूव हो पाएगी, अब जो हमारा ये करंट आ रहा है बार्स, ये हमारा नया टारगेट हो जाएगा आगे के प्रोजेक्ट के लिए। तो आप इसको अपना टारगेट प्लान अप्रूव करके सेव करके आगे आप इससे भी मॉनिटर कर सकते हैं। So this is how easily, ये तो हमारा ग्राफ में आ रहा है, even we can see on the columns also. Yeah, I think look, you want to leave in between. ठीक है, I'll share the recording session. I'm sharing you the feedback link. I think Alok has to leave, so you can fill up this form and share your feedback, and I'll share the recording session in case you want. So now we have seen this variances here. We have got wonderful reports. All type of reports are there, and आप इसके हिसाब से अपनी customized reports भी print कर सकते हैं। जो भी report आपको देखनी है, status report, performance report, everything is available and we can view, and इसके अलावा हम हमारी खुद की भी report इसमें बना सकते हैं। So this is how you have the project activities, कितनी कंप्लीट हो चुकी हैं, कितना उसका वेरिएंसेस है, वो सब आपका इधर आ जाएगा। और वही चीज आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितने % कंप्लीट हो चुका है, और एक्टिविटी हमारी कितने % कंप्लीट हो चुकी है। आई विल जस्ट शो यू शेड्यूल % कंप्लीट, एंड देयर इज वन कॉलम परफॉर्मेंस % कंप्लीट। तो अभी हमारे प्लान के हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट 25% होना था, बट हमने कुल 8% ही अभी अचीव किया है। ये एक्टिविटीज तो हमारी 100 हो गई है बिकॉज ऑफ डिले इन दिस एक्टिविटी विच वाज सपोज्ड टू बी 50%, बट वी हैव नॉट येट स्टार्टेड, सो दैट इज द रीजन। सो यू कैन बाय सिंगल क्लिक यू कैन व्यू द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, और वो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। Reports are there, you have the risk register you can maintain, issues जो प्रोजेक्ट में आ रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके जॉब ड्राइंग हो सकती है, जॉब फोटोज हो सकती है, ऑटोकैड की फाइल्स हो सकती है, टेंडर फाइल्स हो सकती है, वो सब हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे सेव करके रख सकते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी। अभी हम लोग सिंगल उस पे विंडो पे काम कर रहे हैं, स्टैंड अलोन सिस्टम बोल सकते हैं ऑफलाइन। जब यही लिंक हो जाएगा मल्टीपल लोगों के साथ में, आपके टीम मेंबर्स के साथ में, कि एक ने आपका पूरा HPAC का वर्क लिया, एक ने इलेक्ट्रिकल का लिया, एक ने मैकेनिकल का लिया, उसके हिसाब से वो अपने अपने प्लान कर सकते हैं। जैसे मैं एक आपको प्लांट एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट है, ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम का प्रोजेक्ट है, किसी ने मुझसे बोला मैकेनिकल के लिए, तो आई एम जस्ट शोइंग दैट मैकेनिकल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हमारी पूरी मैकेनिकल की एक्टिविटीज आ रही है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम, और वो पूरा प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। इसमें आपका हार्डवेयर, रोबोट कंट्रोलर, सिस्टम कंट्रोलर, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, तो प्रोजेक्ट कैन बी एनीथिंग। So you have IT projects also, you have metro projects also। ये हमारा एक रेलवे का प्रोजेक्ट है, इसमें भी इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, टू रोड लाइक द ओवर ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन था इसमें। तो ये पूरा है, उसकी एक्टिविटीज एंड ऑल सारी जा रही है, क्या एक्टिविटीज है, कब स्टार्ट होंगी, कब कंप्लीट होंगी, ऑल दोज थिंग्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। So any questions or how you find the software, any feedback, you all can unmute yourself, and if you want to ask any question, I would be happy to take those questions now. We have got PMP certification as well. तो जो जो चीजें मैंने अभी आपको दिखाई हैं, ये पूरा कोर्स में हम लोग डिटेल में कवर करते हैं। इंटरफेस, कैलेंडर्स, आप किस तरह से प्रोजेक्ट का स्कोप बनाओगे, एक्टिविटी शेड्यूल, रिसोर्सेज, उसकी एनालिसिस, एवरीथिंग वी कवर इन दिस 40 hours ट्रेनिंग प्रोग्राम। And online training अभी चल रही है because of this situation, so we are offering the online training which one can learn at a flexible timing. Already many people have started and they have completed, so the